السلام علیکم، یہ ہے پروگرام لائیو ایٹ 5۔ میں ہوں شیر دل خان۔ پروگرام میں شامل ہوتی ہیں اہم خبریں اور حاصل کرتے ہیں ان پر تجزیہ، لیکن سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ سب سے پہلے بات کریں گے مردم شماری کی۔ چھٹی خانہ و مردم شماری کا دوسرا مرحلہ کل سے شروع ہونے جا رہا ہے۔ 89 اضلاع ہیں جن میں مردم شماری کا جو سیکنڈ فیز ہے وہ ہوگا۔ ڈیٹیلز کیا ہیں آپ سے شیئر کریں گے آج پروگرام لائیو ایٹ 5 میں۔ پنجاب پولیس کے شہداء کے لیے 3 پیکیجز کا اعلان کیا گیا ہے۔ کروڑ روپے گھر اور پلاٹ دیے جائیں گے۔ کیا تفصیلات ہیں آگے چل کے آپ سے شیئر کریں گے۔ 27 رجب کی وہ رات جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کا شرف عطا کیا گیا۔ آج ملک بھر میں شب معراج انتہائی عقیدت و احترام سے منائی جائے گی اور اس حوالے سے خصوصی محافل بھی منعقد کی جا رہی ہیں۔ کچھ بات کریں گے موسم کی۔ ملک بھر کے موسم کی کیا صورتحال رہے گی؟ پنجاب، خیبر پختونخوا، دیگر علاقوں میں بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ کب تک یہ جاری رہے گا اور کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے بات کریں گے۔ اسپینش لیگ میں بارسلونا نے ریال میڈرڈ کو 3-2 سے شکست دے دی۔ لیونل میسی میچ میں انہوں نے نمایاں کارکردگی دکھائی، 2 گول سکور کیے اور ان کی جو پرفارمنس ہے اس کی وجہ سے یہ میچ بارسلونا نے جیتا ہے، سکور کیے ہیں۔ یہ تو ٹاپ سٹوریز تھیں، آپ نے جان لی۔ اس کے علاوہ بھی کچھ عام خبریں آج کے پروگرام کا حصہ ہوں گی، لیکن بریک کے بعد۔ اب رہیے باخبر، تازہ، معتبر اور مستند خبروں سے۔ تفریح تباہ پر مبنی معلومات صرف پی ٹی وی کے مصدقہ ٹویٹر اکاؤنٹ سے منسلک ہو جائیں، جو فرق واضح کر دے گا۔ قابل اعتبار ذرائع اور غیر تصدیق شدہ مواد کے درمیان آئیے رابطے کریں مضبوط۔ پی ٹی وی، قوم کی آواز۔ پاکستان ایک اسلامی جمہوری مملکت، مسلمان ایک امت، ایک قوم، ایک سوچ، ایک فکر، ایک آزاد ریاست۔ جس طرح کے مسائل سے ہم لوگ دوچار ہیں، جس طرح کے انتہا پسندی آ گئی ہے اور تشدد کے رویے آ گئے ہیں اور ہمارے لب و لہجے بدل گئے ہیں، اس ماحول کے اندر کتاب کی دنیا میں آنا دراصل علم کی دنیا میں آنا ہے، امن کی دنیا میں آنا ہے اور دوستی اور خیر سگالی کی دنیا میں آنا ہے۔ ایجوکیشن کو اکٹھا کیا ہے تفریح کے ساتھ تاکہ بچے وہاں آئیں اور مختلف ایکٹیویٹیز میں بھی شامل ہوں اور کتابیں بھی پڑھیں۔ اسی طرح سے 100 سے زائد ہمارے بک ایمبیسڈرز ہیں، بک لورز ہیں، بک میسنجرز ہیں جو تشریف لا رہے ہیں اور لوگ کتاب خانے کے سیشنز میں ان کو سنیں گے۔
ब्रेक के बाद खुशामदीद बात करेंगे मर्दमशुमारी और खाना शुमारी के दूसरे मरहले की। हबीबुल्लाह खटक साहब सेंसस मेंबर हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया खटक साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। पहला मरहला खैरियत से और बखूबी अंजाम पाया। अब दूसरे मरहले के हवाले से बताइएगा क्या डिटेल्स हैं, और जो पहले मरहले में जो चीज़ें आप लोगों ने विटनेस की हैं या जो चीज़ें आपको बेहतरी के हवाले से लगी हैं वो क्या हैं जो सेकंड मरहले में जिनको इंक्लूड किया जा रहा है? जी शुक्रिया आपका भी, आपने हमें मौका दिया मुझे। पहले मरहले में तो हमें अल्लाह ताला का शुक्र है कि खैर खैरियत से हुआ, सिवाय चंद इंसिडेंट के जो आप लोगों के सामने है कि जी वो वकूफ़ पज़ीर हुए हैं, जिसकी वजह से अब इन्होंने सिक्योरिटी जो है वो मिलिट्री ने उसको थोड़ा सा इन्हांस किया है, और वो वहाँ पे ज्यादा जहाँ पे टाइट सिचुएशन है तो वहाँ पे लेयर्स एक सिक्योरिटी की उन्होंने बढ़ा दी है, सिविल आर्म फोर्सेस के कोऑपरेशन के साथ और लोकल पुलिस फोर्स के साथ। बाकी जहाँ पे अरेंजमेंट का ताल्लुक है तो वो भी हमारे ऑलमोस्ट तैयार हैं। हमने जो पहले फेज में हमने जो लेसन लर्न किया उसमें ये था कि हमारे बड़े साइजेस के ब्लॉक्स आए, जिसकी वजह से हमें वहाँ पे प्रॉब्लम पेश आया कि वहाँ पे प्रॉपर इनमरेशन मतलब टाइमली हो नहीं सकी। और आपने नोट किया होगा कि हमने 5 दिन का अपनी इनमरेशन पीरियड को वहाँ पे एनहांस किया था कि कंप्लेंट्स हमारे पास आ रही थी और हमारे ब्लॉक जो थे बड़े थे। उन चीजों को मद्देनजर रखते हुए हमने एक रिफ्रेशर कोर्स थ्रू आउट पाकिस्तान रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट के लिए ऑर्गेनाइज किया और उनको बताया वहाँ पे जो 4 सुपरिटेंडेंट थे, सर्कल सुपरवाइजर थे, कि अगर आपको इस किस्म का पहले 3 दिन में ब्लॉक कोई बड़े मिले तो काइंडली फौरी तौर पे रिजर्व स्टाफ को डिप्लॉय करें। 350 से ऑनवर्ड घरों के लिए एक अलग रजिस्टर, अलग इन्यूमरेटर, उसकी अरेंजमेंट करें ताकि टाइमली ये सिलसिला हो जाए, क्योंकि आपको भी पता है कि 24 तारीख को हमारी ये इन्यूमरेशन पीरियड खत्म होना है, तो फिर उसके फौरन बाद जो है वो हमारे रमजान का सिलसिला शुरू हो जाएगा। बिल्कुल सही। तो इसलिए लेफ्ट ओवर के चांसेस फिर हमारे पास कम है कि जी कोई हमारी ओवरलैप कर जाए इन्यूमरेशन पीरियड। तो उसके लिए हमने रिजर्व स्टाफ का भी एनहांस करके हमने किया उनको, और विजिलेंट रहने के लिए कहा सर्कल सुपरवाइजर को, 4 सुपरिटेंडेंट को, कि अगर इस तरह के बड़े ब्लॉक्स आते हैं तो काइंडली उसको पहले से आप नजर में रखें और अपनी अरेंजमेंट वहां पे करें। अच्छा खटक साहब, अगर कोई खानदान या कोई ऐसा घर जो रह गया हो खाना शुमारी से या मर्दम शुमारी से, तो वो किस तरह आपको रिपोर्ट कर सकता है पहले फेज में और उनको सेकंड फेज में शामिल किया जाए? पहले फेज के तो मेजॉरिटी एरियाज हमने कवर कर लिए हैं, क्योंकि हमने 5 दिनों का जो पीरियड एक्सटेंड किया था उसमें हमने बाकायदा एक एडवर्टाइजमेंट दी थी मीडिया के थ्रू, वहाँ पे इश्तिहारात चलाए थे, टिकट चलाए थे कि 20 तारीख तक आप अपने अपने एरिया में रहने वाले लोगों को फौरी तौर पे हमें इन नंबरों पे इत्तला दें, क्योंकि आपको पता है कि हमारे इन्यूमरेटर जो हैं वो अपने टाइम ड्यूटी मुकम्मल करने के बाद वहाँ से फारग हो जाएंगे, आर्मी वहाँ से मूव करके अगले इजला में चली जाएगी। तो इसके लिए हमने कल तक भी बाकायदा मॉनिटर किया है, सिवाय कोयटा में कोई 12 या 13 घरों की इतला आई है, बाकी पाकिस्तान में हमें कहीं से इतला नहीं आई कि 20 या 22 तारीख के बाद भी लोग रह चुके हैं। सही। बाकी यहाँ तक ये बात है सेक्रेटरी की, तो उसकी कंप्लेंट हम साथ लेंगे, हमारे जो कंट्रोल रूम्स हैं उनको हम साथ ऑपरेटिव रखेंगे और उसके मुताबिक इमीडिएटली अपनी कंप्लेंट रेलेवेंट सुपरवाइजर इन्यूमरेटर को ट्रांसफर करने के बाद वहां से उनका फीडबैक लेंगे और इंफॉर्मेशन वहां से कलेक्ट करेंगे। अच्छा, अभी 2 अजला जो बलूचिस्तान के थे उनको भी शामिल किया जाएगा मुकम्मल तौर पर नेक्स्ट फेज में? अब तकरीबन कुछ 89 अजला हैं जिनको नेक्स्ट फेज में खाना शुमारी और मर्दमशुमारी होगी। 87 अजला हैं पाकिस्तान लेवल पे, 87 अजला हैं। और बलूचिस्तान के आप कौन से 2 अजला का जिक्र कर रहे हैं? जो बर्फबारी और सिक्योरिटी की वजह से रह गए थे, क्या इस किस्म की भी कोई रिपोर्ट्स हैं कि कुछ वो ज़ियारत क्या था एरिया जो अभी हमने सेकंड फेज में कवर करना है, डिस्ट्रिक्ट ज़ियारत का। ठीक है। बाकी चित्राल में एक है आबादी जो उसकी वजह से बर्फबारी की वजह से डिले होगी, और दूसरा काहान नारान के जो इलाके हैं उनको हमने 1 जुलाई से ऑनवर्ड वो रखने की है। और इसी तरह स्कर्दू में जो है वो गुलतरी वगैरह 2-3 ऐसे चार्जेस हैं जिनको हमने बर्फबारी के हवाले से उनको पेंड किया और 1 जुलाई से उनकी जो इनोवेशन है। अच्छा खटक साहब, जो नेक्स्ट फेज अब शुरू हो रहा है
उसमें भी वही प्रोसीजर और वही SOP अपनाया जाएगा कि पहले खाना शुमारी होगी एक ब्लॉक में, फिर मर्दमशुमारी होगी, फिर दूसरे ब्लॉक में खाना शुमारी होगी और फिर मर्दमशुमारी होगी। क्या इसी तरह फॉलो करेंगे? जी ऐसा ही है, यही प्रोसीजर थ्रू आउट पाकिस्तान हमने स्ट्रीमलाइन किया हुआ है, क्योंकि यूनिफॉर्म प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है सेंसस के हवाले से, तो यही प्रोसीजर अडॉप्ट किया है। अच्छा, जो पहले फेज का रिकॉर्ड है, क्या उसको भी अब अपनी तहवील में आप लोगों ने ले लिया है? उस रिकॉर्ड के हवाले से क्या उसमें अब उसकी जो अदाद शुमार के हवाले से हमें कब तक पता चलेगा कि पहले फेज में इतनी आबादी जो है वो खाना शुमारी और मर्दमशुमारी में आई है? नहीं, फेज वाइज ये प्रोसेस नहीं होगा। अच्छा। ये प्रोसेस होगा कंप्लीट जिस वक्त तमाम अजला के आएंगे। ये अलग बात है कि हमने रिट्रीव करना मटेरियल शुरू कर लिया है। 54 अजला से हमारे पास मटेरियल आ गया है। सिर्फ बलोचिस्तान के चंद अजला और GB के जो हैं वो सामान अभी नहीं आया, क्योंकि दरमियान में लाइन स्लाइडिंग की वजह से वो काम वो उनकी ट्रांसपोर्ट जो है वो रुकी हुई थी, लेकिन कल तक या मैक्सिमम परसों तक वो सारा हमारे पास आ जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया। हबीबुल खटक साहब हमारे साथ मौजूद थे और सेकंड फेज जो सेंसस का है उसके हवाले से आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि उसी तरह जो तरीकाकार पहले फेज में अपनाया गया वही तरीकाकार दूसरे फेज में भी अपनाया जाएगा। अब एक और खबर जो आपसे शेयर करेंगे वो पंजाब पुलिस के शोहदा के हवाले से है। 3 पैकेजेस का ऐलान किया गया है शोहदा के लिए, दहशतगर्दी, बम धमाकों और डाकों से लड़ते हुए पुलिस मुकाबलों हों और दीगर जो अहलकार शहीद होते हैं उनको अब पैकेजेस देने का ऐलान किया गया है। वज़ीर आला पर मुश्तमिल एक आला सतह का जो है वो कमेटी जो है वो 5 रुकनी तश्कील दी जाएगी, जिसमें वज़ीर कानून होंगे, वज़ीर इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स होंगे, चीफ सेक्रेटरी होंगे, IG पंजाब होंगे और होम सेक्रेटरी होंगे। ये कमेटी है, ये देखेगी उन तमाम नामों को जो दिए जाएंगे CCPOs और RPOs और कमिश्नर्स की जानिब से कि ये शोहदा हैं जिन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया किसी दहशतगर्दी के वाक़े में, बम धमाके में या पुलिस मुकाबले की अगर बात की जाए या फिर कोई और वाक़या जो रिपोर्ट होते हैं। तो ये पैकेजेस जो अनाउंस किए गए हैं वो इस हिसाब से अनाउंस किए गए हैं। इस पर मजीद बात करेंगे। सीनियर सहाफ़ी सलमान गनी साहब हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं। सलमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। हमेशा बात होती है कि पंजाब पुलिस हो या किसी भी सूबे की पुलिस हो, उसने बेशुमार कुर्बानियां, बेपनाह कुर्बानियां दी हैं दहशतगर्दी की जंग में। तो अब टाइम है कि उनको एक्नॉलेज किया जाए, उनके शोहदा की जो फैमिलीज हैं उनको पेट्रोनाइज किया जाए और अब ये प्लान किया गया है कि अब प्लॉट भी दिए जाएंगे और पैसे भी खातिर खा दिए जाएंगे जो शोहदा हैं। किस तरह देख रहे हैं, कितना बड़ा स्टेप है ये? देखें, ये वक्त की जरूरत थी और इसमें कोई शक नहीं कि पुलिस की मुनासिब अंदाज में सरपरस्ती नहीं हुई और हमारी पुलिस को दहशतगर्दी से निपटने के लिए तैयार नहीं किया गया था, लेकिन गैर मामूली सूरत में गैर मामूली इक़दाम की जरूरत पड़ती है और फौज के साथ साथ पुलिस ने भी दहशतगर्दी के सद्देबाब में बेबाक कुर्बानियां दी हैं। और मैं समझता हूँ कि ये एक अहम पेशरफ्त है कि अगर आप अपने एक कांस्टेबल को 1 करोड़ रुपया और 5 मरले का प्लॉट देते हैं शहादत की सूरत में, सब इंस्पेक्टर तक को 1.25 करोड़ और घर दिया जाएगा, DIG के लिए 2 करोड़ 20 मरले का घर, और इसी तरह दीगर मराद जो है, मैं समझता हूँ ये दरअसल फोर्सेस की सरपरस्ती होती है। और बात यह कि दहशतगर्दी के हवाले से हमारा कौमी मौक़िफ़ ये है कि हम हालत जंग में हैं, हमने दहशतगर्दी के नासूर को दफन करना है और उसमें बुनियादी रोल जो अदा करना है वो पुलिस ने करना है। देखें, आज ये जो मामलात है ये कोई एक सरहदी मामलात नहीं है, ये हमारे गली महलों के अंदर के वाकयात है और हमारे अंदर ही वो सहूलतकार मौजूद है जिनसे पुलिस ने निपटना है। मैं समझता हूँ कि ये इक़दाम बहुत अच्छा इक़दाम है, इससे यकीनन हौसला अफजाई होगी पुलिस फोर्स की और पुलिस फोर्स की सरपरस्ती करके हम रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, और जिंदा कौमें वही होती हैं जो अपने शोहदा को याद रखती हैं। बहुत शुक्रिया सलमान गनी साहब, सीनियर सहाफ़ी हमसे बात कर रहे थे। और अब देखना ये होगा कि इस पैकेजेस को जो अनाउंस किए गए हैं ये शोहदा तक कब, उनकी फैमिलीज तक कब पहुंचाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे और स्पोर्ट्स की कुछ बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले तज़किरा करेंगे पाकिस्तान के लिए एजाज हासिल करने वाले यूनुस खान, जिन्होंने पहले पाकिस्तानी होने का एजाज हासिल किया है 10,000 रन बनाने वाले। 13वें वो दुनिया के खिलाड़ी हैं जिन्होंने ये माइलस्टोन अचीव किया है 10,000 रन का। इस हवाले से एक रिपोर्ट पाकिस्तान टेलीविजन के नुमाइंदा एमन जाहिद खोकर ने मुरतब की है, वो रिपोर्ट देखते हैं, उसके बाद वापस आएंगे। क्रिकेट के मैदान में जहां दुनिया भर के खिलाड़ियों ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा करके अपना लोहा मनवाया, वहां पाकिस्तानी बल्लेबाज भी किसी से कम नहीं। पाकिस्तानी बल्लेबाज यूनुस खान भी इन खिलाड़ियों की फहरिस्त में शामिल हैं।
जिन्होंने टेस्टिंग के बाद पाकिस्तानी बल्लेबाजों में जावेद मियांदाद 8,832 रन के साथ दूसरे और इंजमाम उल हक 8,823 रन के साथ तीसरे नंबर पर हैं। एमन जाहिद खोकर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाजा की यूनुस खान के इस अचीवमेंट के हवाले से, पाकिस्तान के लिए जो उन्होंने एजाज हासिल किया उसके हवाले से कुछ बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल बेग। इकबाल भाई, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। यूनुस खान की अगर बात की जाए तो मायनाज बल्लेबाज, और अब इतना बड़ा रिकॉर्ड भी, इतनी बड़ा माइलस्टोन भी उन्होंने अचीव कर लिया है कि वो 10,000 रन बनाने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए हैं। क्या कहेंगे उनकी इस अचीवमेंट पर आप? शेरदिल, बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल यूनुस खान पाकिस्तान के वो खिलाड़ी हैं कि जो अपनी मेहनत के जरिए, जो बहुत ज्यादा स्टाइलिश बैट्समैन नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप देखें, अगर पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री उठाकर देखें तो बड़े बड़े ग्रेट बैट्समैन गुजरे। लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद से अगर आप शुरू करें, जहीर अब्बास, जावेद मियांदाद, मोहम्मद यूसुफ, इंजमाम उल हक, शहीद अनवर, सलीम मलिक, लेकिन 10,000 रन का कारनामा सर अंजाम देना यूनुस खान की जानिब से एक ऐसा एजाज है कि जिस पर पूरी कौम जितना भी फख्र करे कम है। क्योंकि मैंने इनका कैरियर शुरू से फॉलो किया है शेरदिल, जब इन्होंने फरवरी 2000 में कराची में अपना पहला वनडे खेला और फिर उसी माह के आखिर में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम रावलपिंडी में अपना टेस्ट डेब्यू किया। तो एक ऐसा खिलाड़ी जो रोल मॉडल है यंगस्टर्स के लिए, जो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के सरजिलाली परचम की सरबुलंदी के लिए खेला है। यकीनन क्रिकेट का मॉडरेट जब भी पाकिस्तान क्रिकेट की तारीख लिखने बैठेगा, यूनुस खान का नाम सर फहरिस्त होगा और हम सब के लिए बड़े खुशी और बड़े एजाज और बड़े फख्र की बात है। 52.29 की औसत और उसके साथ साथ 34 हंड्रेड्स जो हर ओपोनेंट के खिलाफ उन्होंने स्कोर की है, ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जी हाँ, बिल्कुल। और आप देखें ना, यूनुस के अगर करियर पर नजर डालें शेरदिल, तो उनके करियर में कहीं खुशी है तो कहीं गम भी है। 2 मरतबा ऐसा हुआ कि 2 दौरों पर यूनुस खान पाकिस्तानी टीम के हमरा थे। एक दौरे पर उनके भाई यूक्रेन में एक्सीडेंट में हलाक हो गए और फिर वो वापस वतन लौटे। फिर एक दौरे पर उनके एक और भाई जर्मनी में एक्सीडेंट में हलाक हो गए। एक दौरे के बाद उनके फादर जो थे, जो कि कराची आए मर्दान से, कराची की पाकिस्तान स्टील मिल में उन्होंने मुलाजमत की। यूसुफ खान नाम था। और उनके भाई शरीफ खान जो एक्सीडेंट में हलाक हुए, वो क्रिकेट खिलाते थे। और मैं तो इनका करियर शुरू से देख रहा हूँ, सीमेंट विकेट पर खेलते थे। ये ट्रायल देने गए, मैं आपको बड़ी दिलचस्प बात बताऊं शेरदिल, ये यहाँ डिफेंस क्रिकेट स्टेडियम कराची में ट्रायल देने गए। हारून रशीद ट्रायल ले रहे थे। यूनुस खान के पास एक लाल कलर का पजामा था, लोअर, और ब्लू कलर की शर्ट थी। तो इनको उन्होंने भगा दिया कि यार तुम क्रिकेट खेलने आए हो या शादी में आए हो। बड़ा दिल बर्दाश्त हुआ, लेकिन उसने मेहनत जारी रखी और आज देखें कि वो सारी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है। और जो फैसला उन्होंने किया है रिटायरमेंट का, आप समझते हैं दुरुस्त है या और क्रिकेट खेल सकते हैं वो? देखिए, बाइज्जत और बावकार अंदाज से जाना चाहिए। शेरदिल, पाकिस्तान क्रिकेट की रिवायत रही है। मैंने बड़े बड़े खिलाड़ियों को देखा है। हनीफ मोहम्मद के बारे में तो मैंने पढ़ा है कि वो बड़े रोते हुए दिल बर्दाश्त कर गए। जहीर अब्बास को मैंने देखा किस तरह से गए। जावेद मियांदाद किस तरह से उनकी आंखों में आंसू थे। शहीद अनवर ने सेंचुरी स्कोर की सेंचुरियन में 2003 के वर्ल्ड कप में, और बादल नाफास्ता उन्होंने कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिटायरमेंट का ऐलान किया। इसी तरीके से वसीम अकरम, वकार यूनुस को ले लें, शोएब अख्तर को ले लें, शाहिद आफरीदी ताजा मिसाल है। तो पाकिस्तान क्रिकेट की ये रिवायत रही है कि खिलाड़ियों को बजाय इसके कि हम शायाना शान अंदाज से अपने हीरोज को बाइज्जत अंदाज से रुखसत करें, ऐसा नहीं होता। तो यूनुस खान ने शायद नविस्ते दीवार पढ़ लिया और वो चाहते हैं बाइज्जत अंदाज। अच्छा, पाकिस्तान में जो बल्लेबाजी की लेगेसी है, आपने बड़े बड़े बल्लेबाजों के नाम लिए, हनीफ मोहम्मद साहब का नाम लिया, जहीर अब्बास साहब का नाम लिया, जावेद मियांदाद का नाम लिया। उसके बाद देखा जाए इंजमाम, मोहम्मद यूसुफ, फिर मिसबाह उल हक, यूनुस खान, इनके बाद वो जो बल्लेबाजी के हवाले से कहा जाता था पाकिस्तान में कि ये बड़े मायनाज बल्लेबाज हैं, तो आपको कोई और नाम नजर आता है जो यूनुस खान की लेगेसी पे या जो माजी के पाकिस्तान के बल्लेबाज हैं उनकी लेगेसी पर चल सकेगा, चल रहा है? देखिए शेरदिल, टेस्ट क्रिकेट में तो मैं कह सकता हूं कि अगर अजहर अली को मुस्तकिल मौके मिलते रहे, आप देखें अजहर अली यूनुस खान के हमरा पाकिस्तान के उन 4 बैट्समैनों में शामिल है जिन्होंने टेस्ट मैचों में ट्रिपल सेंचुरी स्कोर की। हनीफ मोहम्मद, इंजमाम उल हक, यूनुस खान और अजहर अली। अजहर अली में पोटेंशियल है, टेस्ट मैचेस में वो रन के अंबार लगा सकते हैं, वो बड़े आगे तक जा सकते हैं, बशर्ते के क्रिकेट की सियासत की नजर ना हुए, उनमें बड़ा पोटेंशियल है। इसी तरीके से असद शफीक बड़ा टैलेंटेड बैट्समैन है, इन और आउट हुआ है। अगर उसको मुस्तकिल कॉन्फिडेंस दिया जाए
चाहे तो वो भी रन कर सकता है। अच्छा, क्विकली कम हमारे पास टाइम है, इकबाल भाई मैं सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि यूनुस खान की जो डिसिप्लिन था, उनकी जो क्रिकेट के साथ साथ तो वो डिसिप्लिन भी आउटस्टैंड करता था, तो क्या वो सिखा सकेंगे? क्या पीसीबी को ऑन बोर्ड लेना चाहिए यूनुस खान को उनके रिटायरमेंट के बाद, कि नए खिलाड़ियों को सिखा सकें? बिल्कुल लेना चाहिए। आप भारत की मिसाल ले लें, राहुल द्रविड़, अनिल कुंबले रिटायरमेंट के बाद भारतीय क्रिकेट टीम के साथ वाबस्ता हो गए, एंडी स्टाउस इंग्लैंड के कप्तान वो वाबस्ता हो गए। यूनुस खान तो रोल मॉडल है और उनको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि उनकी खिदमत लें, यंगस्टर्स के लिए इंस्पिरेशन है और पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बड़ा अच्छा होगा। शेरदिल सही, बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमसे बात कर रहे थे और खराज तहसीन पेश कर रहे थे यूनुस खान को। हम भी पेश करते हैं और उनको हम गुड लक कहेंगे और ये भी कहेंगे कि वो पाकिस्तान में आने वाले जो नेक्स्ट बल्लेबाज हैं उनको भी कुछ सिखा कर जाएं, ताकि वो भी उसी लेगेसी को फॉलो करें जो पाकिस्तान में बैटिंग के हवाले से वो छोड़कर जा रहे हैं। आखिर में क्विकली जो स्पोर्ट्स की एक और खबर हम शामिल करेंगे वो है स्पेनिश ला लीगा के हवाले से। आपको बताएं कि एल क्लासिको इस मैच को कहा जाता है जो रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के दरमियान खेला जाता है, और जो मैच कल खेला गया रियल मैड्रिड और बार्सिलोना के दरमियान, तो उसमें कामयाबी हासिल की है बार्सिलोना ने 3-2 से। इनिशियली ये लग रहा था कि रियल मैड्रिड जो है वो अच्छा खेल पेश कर रहा है और वो बार्सिलोना को आसानी से शिकस्त दे देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लियोनेल मेसी एक सीसा पिलाई दीवार बनकर साबित हुए और उन्होंने अपनी जो कारकर्दगी है, 2 गोल्स हैं उसकी सूरत में टीम को ये मैच जितवाया है। इस पर मजीद बात करेंगे। रेहानुल हक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। रेहान, वक्त हमारे पास थोड़ा है, कल का मैच आपने फॉलो किया। रियल मैड्रिड शुरू में ऐसा लगता था कि जीत जाएगा, लेकिन बार्सिलोना ने बहुत जबरदस्त कमबैक किया। मेसी एक वाहिद खिलाड़ी हैं जो इस जीत में उनके सामने खड़े रहे, उनके राह में हायल रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर आप? पहली चीज तो इसमें कि कभी भी क्लासिको होता है मैड्रिड और बार्सिलोना, तो आप कभी भी रिजल्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। कोई इसमें आप जितनी मर्जी प्लानिंग कर दे, जितनी मर्जी टैक्टिक्स ले आए, इन दी एंड यही होता है हर क्लासिको में। आप पिछले 50 साल उठाकर देख लें कि जब मैच होता है तो कोई सिस्टम नहीं नजर आता। दोनों टीम्स बहुत, यानी गोल अगर दूसरी टीम कर ले तो दूसरी टीम बिल्कुल आउट ऑफ शेप हो जाती है। और कल इतने ओपन चांसेस से एक मजे का स्टार्ट ये था कि मोस्ट नंबर ऑफ शॉट्स कंसीडर्ड बाय बार्सिलोना ऑन टारगेट सिंस 2002। इससे आपको आइडिया होता है कितना ओपन मैच था। एज फार एज मेसी इज कंसर्न्ड, हमें पता है कि वो कितना वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, हाउ ग्रेट ही इज, और स्पेशली उसका मैड्रिड के अगेंस्ट जो रिकॉर्ड है इन बिग मैचेस वो सबको पता है। लेकिन बुस्केट्स जिस तरह कल खेला है, क्योंकि बुस्केट्स इस सीजन उतनी परफॉर्मेंस नहीं दे सका, बार्सिलोना सारा डिपेंडेंट थी बुस्केट्स के ऊपर। जितनी भी डिफेंस से बॉल बाहर निकली है वो बुस्केट्स ने निकाली। एंड मैड्रिड डिसअपॉइंटेड होगा क्योंकि 10 मैन के बाद जब उन्होंने इक्वलाइजर मारा 2-2, उसके बाद जो सर्गियो रोबर्टो ने रन मारा है, उसके बाद मेसी को जो सेटअप किया है जॉर्डी अल्बा ने, वो रन मारने से पहले मैड्रिड की सारी टीम ऑलमोस्ट जो है वो बार्सिलोना के हाथ में है। आपको जरूरत नहीं थी ये करने की, बिकॉज आप ऑलरेडी लीग टाइटल में आ गए थे। अगर एक ड्रॉ होता तो मैड्रिड को बहुत फायदा था, लेकिन वो वहाँ आप कह लें जज्बात कह लें, टायर्ड लेग्स कह लें, बट क्लासिको में ये होता है। बड़ा मैच था, क्रंच मैच था, तो कहीं ना कहीं तो नर्व्स जो हैं वो किसी के जवाब देने थे। बहुत शुक्रिया। रेहानुल हक हमसे बात कर रहे थे और एनालिसिस दे रहे थे इस मैच के हवाले से। वक्त थोड़ा एक ब्रेक का, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कुछ खुसूसी बात करेंगे। हर महीने या दूसरे महीने एक प्रोजेक्ट का इंशाल्लाह इफ्तिताह करने जा रहे हैं। एक तो ये आज 717 मेगावाट और उसके बाद इंशाल्लाह इसको भी 400 मेगावाट मजीद अगले महीनों में इससे
मजीद हासिल होगा। इसके बाद चश्मा न्यूक्लियर इंशाल्लाह हमारा मई में आ रहा है जो 315 मेगावाट देगा। पतरिंड है जो 147 मेगावाट देगा, वो भी मई में आ रहा है। और फिर मई में इंशाल्लाह हमारा हवेली बहादुर शाह 500 मेगावाट बिजली जो है वो अगले महीने में इंशाल्लाह वो भी तैयार हो जाएगा। फिर हवेली बहादुर शाह जून में बकाया बिजली जो है वो 500 मेगावाट के लगभग वो जून में देगा। उसी तरह से फिर जून में साहिवाल कोल पावर, जिसमें शहबाज शरीफ साहब ने खुद जाती मेहनत की है, 660 मेगावाट इंशाल्लाह उसका तैयार हो जाएगा। और फिर बल्लो की, जिसमें इंशाल्लाह हमें तकरीबन 500 मेगावाट अगस्त में मिलेंगी। बल्लो की का दूसरा जो हिस्सा है वो इंशाल्लाह सितंबर में इंशाल्लाह उसका इफ्तिताह होगा। और फिर पोर्ट कासिम कोल पावर जो है वो अल्लाह के फजल से दिसंबर 660 मेगावाट देगा। साहिवाल कोल पावर जो है वो बकाया 660 मेगावाट इंशाल्लाह दिसंबर में देगा। और फिर इसी तरह से दूसरे मंसूबे हैं जो कि इंशाल्लाह 2018 के अवाइल में जो है वो काम करना शुरू कर देंगे। इतनी बिजली पाकिस्तान में गुज़श्ता 70 सालों में लगाई गई, तकरीबन उतना ही इजाफा हमने इन पिछले 3 सालों में किया है। ब्रेक के बाद खुशामदीद। जैसा कि आप जानते हैं आज मुल्क भर में मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई अक़ीदत व एहतराम से मनाई जाएगी और इस हवाले से हम देख रहे हैं कि खुसूसी महाफिल का इनकाद भी किया जा रहा है। 27 रजब की वो रात जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराजुन नबी का शर्फ अता किया गया और हज़रत जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम बुराक के जरिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर गए और वहाँ पर उनकी मुलाकात उनके रब से करवाई गई। और इसमें बहुत से इवेंट्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। जन्नत और दोज़ख भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई गई, अंबिया कराम से उनकी मुलाकात करवाई गई और साथ ही साथ उन्होंने नमाज की इमामत भी फरमाई। इन तमाम तर एस्पेक्ट्स और इन तमाम तर इवेंट्स के हवाले से हम बात करेंगे। आज स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन करें सबूक सैयद, सीनियर सहाफ़ी हैं, एंकर पर्सन हैं और PTV पर प्रोग्राम खबर ख्याल होस्ट करते हैं। सबूक बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। हम आपसे गुफ्तगू करेंगे लेकिन उससे पहले इस वाक़े के हवाले से एक रिपोर्ट मुरतब की गई है, रिपोर्ट देखते हैं उसके बाद वापस आएंगे। शाम की आई है फलक से आवाज, सजदा करती है सहर जिसको वो है आज की रात। वो ये गाम है हिम्मत के लिए अर्श बरी, कह रही है ये मुसलमान से मेराज की रात। मेराज मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात इंसानी का एक ऐसा वाक़या है जो रहमतुल लिल आलमीन की रब्बे कायनात से मुलाकात से इबारत है। रब्बे कायनात ने अपने महबूब की शान वाज़े करने और उन्हें अपने जलवे नूर से मुतारिफ कराने के लिए मेराज पर बुलवाया। सबक मिला है ये मेराज मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरियत की जद में है गर्दूं। शब मेराज का जिक्र कुरान पाक में इन अल्फाज में किया गया, पाक है वो ज़ात जो अपने बंदे को ले गई एक रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। वो मस्जिद जिसके गिर्द हमने बरकत नाजिल फरमा दी ताकि हम इसे दिखलाएं अपनी निशानियां। बेशक वो सुनने वाला और देखने वाला है। सूरह बनी इसराइल की इस आयत में अल्लाह ताला ने फरमाया पाक है वो ज़ात, यानी अल्लाह ताला की ज़ात हर ऐब व नक्स से पाक है। वो अल्लाह जिसने मेराज कराई अपने बंदा खास को, यानी अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फरमाया रात के थोड़े से हिस्से में, लैलन रात को कहते हैं और असरा रात के सैर को, रात के सफर को कहते हैं। और असरा का फाइल अल्लाह ताला है कि अल्लाह ताला ने ये मेराज अपने हबीब नबियों के सरदार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करवाई। आप अलैहिस्सलाम का ये सफर मेराज
اس کا پہلا مرحلہ مسجد حرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، کعبۃ جس میں واقع ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور مسجد اقصی جو فلسطین میں ہے وہاں پہلا مرحلہ مکمل ہوتا ہے۔ سرور کائنات ہجرت سے 5 سال قبل رجب کی 27ویں شب اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر پہلے استراحت تھے جب جبریل علیہ السلام 50,000 فرشتوں کی جماعت کے ساتھ براق سواری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور یوں اس سفر مبارک کا آغاز ہوا۔ آپ علیہ السلام کا یہ سفر شروع ہوتا ہے، جبریل آپ کی معیت اختیار کرتے ہیں، مسجد اقصی آپ پہنچتے ہیں، آپ کی سواری کو وہاں باندھا جاتا ہے جہاں دیگر انبیاء کی سواریوں کو باندھا جاتا تھا۔ آپ مسجد اقصی میں تشریف لے جاتے ہیں، سارے نبی حضرت آدم علیہ نبینا سے لے کر حضرت عیسیٰ روح اللہ تک مثالی اجسام کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہے۔ حضور علیہ السلام سب کی امامت کرتے ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی معراج ہے۔ آسمانوں کی طرف ایک عظیم سفر کے دوران خالق کائنات نے آپ کو مختلف علوم سکھائے اور مشاہدات دکھائے، اور امت محمدیہ کو آپ کی وساطت سے نماز اور روزے کے تحائف سے نوازا گیا۔ موسیٰ سے ہوش رفت بکف جلوہ صفات، تو عین ذات می نگری در تبسمی۔ موسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کی ایک صفت کے جلوے سے ہوش کھو بیٹھے، مگر اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو نے عین ذات خداوندی کا مشاہدہ فرمایا، اور وہ بھی تبسم کی حالت میں۔ یہ وہ خصوصیت ہے ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو خدا کے رسول ہونے کی حیثیت سے تا قیامت انسانیت کے بھی حقیقی نمائندے ہیں، اور جن کی اطاعت پوری انسانیت پر لازم ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اور ان کی جو حیات طیبہ ہے وہ سب کے لیے مشعل راہ ہے، چاہے مسلمان ہو یا کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص۔ تو اسی طرح مختلف مذاہب کے جو ماننے والے ہیں، جو ان کے پیروکار ہیں، وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے، جو ان کی حیات طیبہ ہے، ان سے بہت کچھ سیکھتی ہے اور ان کے حوالے سے بہت کچھ کہتی ہے۔ تو ہم نے ایک پیکج تیار کیا ہے جس میں مہاتما گاندھی، معروف شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی، اینی بیسنٹ اور شنکر اچاریہ، یہ مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ، ان کی شخصیت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں وہ سنتے ہیں اور پھر واپس آئیں گے۔